नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयात् भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रीला प्रभुपाद की सब घट्टे भक्तों की जय। हरे कृष्णा। ओके इन हिंदी फॉर एवरीबॉडी। उधर लगा दो प्रभु क्या एवरीबॉडी ओके इन हिंदी। हिंदी में सब हाँ वसंत प्रभु भी नहीं है आज तक नहीं तो हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम। देखिए एक मीटिंग अगर मान लीजिए शेख मोहम्मद साहब के साथ में 50,000 लोग के साथ हो रही हो और एक खाली 10 लोगों के साथ हो रही हो, किसका महत्व ज़्यादा है? 10 वालों का। तो आज भी ऐसे ही है हर बार ज़्यादा लोग होते हैं, आज सब गए हुए हैं। तो क्या है वो प्राइवेट पार्टी, दैट इज मोर क्लोजर टू द रूलर। सो कृष्णम वंदे जगत गुरु। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल आज का सबके विचार सुनना चाहूंगा मैं भी, जिससे आई एम ऑल्सो I can, relish your thoughts. गन्ना सबको पता, गन्ना शुगर केन। तो एक बार गन्ने ने सोचा कि शुगर केन जूस, गन्ने का रस चखा जाए। गन्ने ने सोचा कि गन्ने का रस चखा जाए। द शुगर केन थॉट आई शुड टेस्ट द शुगर केन जूस। So what are the thoughts on this? वो कैसे चख सकता है? गन्ना अगर है, sugar cane is there. The sugar cane wants to taste the sugar cane juice. So to become juice, what the sugar cane must do? What it must do? Get squeezed. Huh? Get squeezed. It should be crushed. It should be between the two cylinders which are moving, it has to pass through. Then end में वैसे गन्ना बचेगा नहीं but गन्ना if it is there, then the sugar cane can taste the juice. Same situation is ours. In this material world, we are trying to taste the rus of the matter. For that, what we must go through? We must get crushed in this material world. Anybody who can enjoy a car and a bungalow and a villa and all these things without getting crushed? Anybody? In this universe? Nobody is there. So meaning what? We are tasting our own crushed form. It is not something which somebody else has come and given. You know the camel. Camel likes to eat. What does it like to eat? Cactus. The thorns. Why it likes? Blood comes and it becomes very tasty. And the camel is thinking, wow, thorns are so tasty. But he doesn't know that it is his own blood. Similarly, when the sugarcane thought that I should taste sugarcane juice, it thought I will get it free. But it doesn't know that it is his juice only which he can get after getting crushed. Similarly, in this material world, I am wanting to enjoy matter, which is the sugarcane juice. But I must get crushed to taste my own blood and my own juice. Yes or no?
लॉजिकल, करेक्ट? But the same sugar cane can, if it is offered, if it is connected to the divine, crushing will still be there, but the pain of crush will reduce. Getting crushed is anxiety, getting crushed is I want this, I couldn't get this, I want this, that basically I can say for myself because I am getting crushed, I know. I don't need it is a rhetorical question, correct? So like this. So if Krishna is in the center, Lord Ram is in the center, then the suffering, then everything becomes an offering. The crushing also you don't feel because Krishna, you know, everybody remembers that there was one kid who asked Krishna that wherever I am difficulty, where are you? So he said, you have seen, whenever you are walking, there are two sets of steps walking. I am always holding your hand and walking. So he said, no, but sometimes I can see only one pair of steps. One is missing. So where are you? He said, no, at that time I am holding you up in my arms. I am there at that time. So therefore this is the relief. अगर relief चाहिए तो सेंटर में भगवान को रखो. 927 रिपीट करिए. यत् करोसि यदस्नासि यत् जहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मतर्पणम. बस जो भी काम करो क्रश होने वाला. यत् करोसि जो कुछ करो, यदस्नासि जो कुछ खाओ, यत् जहोसि ददासि जो कुछ दो, यत् तपस्यसि जो कुछ तपस्या करो, घर में, ऑफिस में, बच्चों को बड़ा करने में, ऑफिस जाने में, स्कूल जाने में, प्रसाद बनाने में. यत् सारी तपस्या ही है. यत् खाली भजन का मतलब खाली हरे कृष्ण महामंत्र या राम राम कृष्ण कृष्ण करना नहीं है. वो तो है ही. जो कुछ करते हैं वो भगवान से कनेक्ट करने से वो भजन है. घर में अगर माताएं झाड़ू दे रही हैं भगवान का नाम सुन लेके कि भगवान का मंदिर को साफ किया जा रहा है, तो वो उतना ही भजन हो गया. यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम. बस मुझे ऑफर करो. ये करने से क्या होगा? शुभाशुभ फलाय रेवा मोक्ष से कर्म बंधना. शुभ और अशुभ फल जो है, 3 तरह के फल हैं जी. एक है शुभ फल, अच्छा काम किया तो बहुत अच्छा काम किया तो प्रमोशन, मटेरियल फल. दूसरा खराब काम किया तो अशुभ फल. पर तीसरा वाला फल क्या है? ना शुभ है ना अशुभ है संसार का, वो उससे ऊपर है. उसमें हीट नहीं है, उसमें क्रशिंग की हीट नहीं है, क्योंकि वो भगवान को ऑफर किया. जैसे अगर मैंने अच्छा काम किया तो प्रभु जी आपको प्रमोशन मिल सकता है, अब मैंने खराब किया तो आप सैक हो सकते हो. इसी तरह से जिसके लिए काम किया जाता है उसको फल भोगना पड़ता है, करेक्ट कि नहीं? इसी तरह से भगवान के लिए काम करने से भगवान टेक केयर करते हैं, उन्हें भोगना पड़ता है. यूँ समझ सकते हैं. इन अ लाइटर वेन इट कैन बी सेड. ठीक है जी, एक तो ये हो गया. दूसरा, व्हाट इज द कंक्लूसिव प्रूफ दैट वी आर सर्वेंट्स? मुझे हर वक्त लगता है मैं ओनर हूं, पर एक्चुअली में कंक्लूड किया जा सकता है लॉजिकली वी आर सर्वेंट्स. एनी गेसेस? वी आर ऑलवेज सर्विंग. वेरी गुड. We are always trying to meet others' expectations. हाँ, ओके, वेरी गुड. सो वी आर सर्विंग. अगर करेक्ट, वेरी गुड. और कुछ? हाँ जी, कुछ सजेशन? ये क्लास नहीं है यहाँ पे, सब बोधयंता परस्परम. We are limited by material laws. We cannot expand or do anything freely. हाँ, वी आर लिमिटेड, सो वी आर सर्वेंट्स. वेरी गुड पॉइंट. यस. और कुछ? Nothing is in our control. हाँ, nothing is in our control. अब taking all these answers, all are correct. We are servants. अगर servant नहीं है तो क्या हो गए? मास्टर हो गए, ओनर हो गए. ओनर हो गए तो you can do what you want. You can control. You can be outside the material laws. You decide. मुझे ये मेरे साथ ऐसा होना चाहिए और फिर होगा, तब तो मैं ओनर हूं. ओनर का मतलब है आई शुड हैव कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल. ऑफिस में उनको लगता है हम ओनर हैं,
तो उनको नहीं पता, उनके भी ददामी बुद्धि योग हम तमामी को बुद्धि कोई चला रहा है। आप अपनी बुद्धि को चला सकते हैं क्या? मैं ऐसा सोचूंगा, ये सोच भी भगवान दे रहे हैं। ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे ऐसा सोचना चाहिए। तो अब क्या मैं ओनर हूं, पहले ये चेक किया जाए, मैं क्या कंट्रोल कर पाता हूं। चलिए जी, एक एक करके बात करते हैं। क्या मैं अपने थॉट्स कंट्रोल करता हूं? अच्छा, क्या मैं हस्बैंड को कंट्रोल करता हूं? ऐसा हस्बैंड सोचते हैं, माता जी को पूछो। अच्छा, क्या वाइफ्स कंट्रोल होती हैं? देखो। अच्छा चलो, बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। आज कल मुझे टेम्परेचर नहीं होगा, पक्का मैं कंट्रोल कर लूंगा। आप बताओ कौन सा कंट्रोल कर सकते हो आप? एक बताओ, एक है। प्रिकॉशंस, हाँ प्रिकॉशन आप ले सकते हो। नहीं, कंट्रोल मतलब ओनर का मतलब यह है कि ये मेरी चीज है। ओनर का मतलब होता है आई ओन इट। अगर मैं उसे ओन करता हूं तो मेरी मर्जी से चलना चाहिए। अगर मैंने ये फ्लैट, अपार्टमेंट, फ्लैट, विला, व्हाटएवर खरीदा है अगर, तो इसमें कभी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओनर हूं ना मैं। तो मेरी मर्जी चलनी चाहिए ना। फ्लैट की मर्जी क्यों चल रही है? हरे कृष्णा, ये तो फ्लैट की मर्जी चल रही है, लीकेज शुरू हो गई। तो मैं कैसे ओनर रहा? मेरे को तो उसको ठीक कराना पड़ रहा उल्टा। हाँ जी, और कोई आप सोचिए, अगर हम ओनर हैं तो किस बात के ओनर हैं बताओ? हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं? एक रीजन बताओ। और अगर ये कर लिया तो यस, पर ये करने के लिए ये भगवान कर सकते हैं। ये भी नहीं कंट्रोल कर सकते। नहीं, थॉट्स आप कंट्रोल नहीं, आप कैन यू कंट्रोल योर थॉट दैट नेक्स्ट सेकंड आई शुड थिंक लाइक दिस थॉट ऑल्सो इज नॉट माइन। हाँ माता जी, हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम सर्वेंट हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यू आर ओनली प्रूविंग द पॉइंट। नहीं, अभी पता पड़ जाएगा। नहीं, अभी तो ज्यादा हमने कुछ नहीं किया, दो ही किया, हम समराइज कर लेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम सब सर्वेंट हैं। इसका कंक्लूसिव प्रूफ क्या है? चलो हम सर्वेंट नहीं है, हम ओनर हैं। ओनर है तो हमें कंट्रोल होना चाहिए हर चीज का। जिस भी चीज के ओनर है हमें कंट्रोल होना चाहिए। अब बताइए आप किस चीज को कंट्रोल करती हैं? नेक्स्ट ब्रेथ भी मेरे हाथ में नहीं है। कितना बड़ा हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। भगवान ने हमें ऐसी बुद्धि दे रखी है, सोचो बेटा तुम ओनर हो। अरे भाई, किस बात के ओनर है हमें बता तो दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सर्वेंट हैं। अगर हम या तो ओनर है या सर्वेंट है, तीसरा तो कुछ है नहीं। तीसरा क्या है? कोऑर्डिनेटर। सही बोला। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्विंग। ओनर बनना है तो कंट्रोल करके दिखाओ। हाँ, 100% कंट्रोल। मैं ये बॉडी कंट्रोल करता हूँ, मतलब बूढ़ा नहीं होने दूंगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होने दूंगा, टेम्परेचर नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। वो तो है नहीं, तो बॉडी का मैं कंट्रोलर नहीं हुआ। ये घर है, इसको मैं सोचता हूँ लीक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक करना चाहिए, बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, पर ये तो हो रहा है। तो मैं घर को कंट्रोल नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ मेरी वाइफ ऐसे करे वैसे करे, वो सुनती नहीं। वाइफ सोच रही है हस्बैंड ऐसे करे, हस्बैंड तो बिल्कुल ही नहीं सुनता, वाइफ फिर भी सुन लेती है। जस्ट टू गिव अ लिटिल बेनिफिट ऑफ डाउट। क्या कह रहे प्रभु? क्या वाला? कौन सा वाला? अपोजिट साइड से हो रहा है प्रभु। पति ऐसा करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि हम कंट्रोलर नहीं है। कंट्रोल हम ओनर नहीं है। अगर हम ओनर की कैटेगरी में नहीं है तो हम किस कैटेगरी में है जी? कंक्लूसिव प्रूफ है ये। इसके लिए कोई भागवतम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल, करेक्ट। ओके, हमने एक और किया था, बाद में आपसे शेयर कर लेंगे, ठीक है जी? चलिए जी, अब हम क्या बजा क्या है भैया?
ओके वेरी गुड, अभी थोड़ा समय है। और भूषण प्रभु और नहीं माता जी कह भी नहीं सकते जल्दी खत्म करो, अब तो बैठे माइक पे शुरू कर दिया। वो भी कंट्रोल नहीं है उनके पास। हे भगवान, क्या करेंगे। और मेरे पास कंट्रोल मेरा नहीं है। मतलब ये जब तक भी सेवा चलेगी किसी और के कंट्रोल में है। ये सच है, करेक्ट। अच्छा जी, तो अब हम क्या चर्चा कर रहे थे, क्या कथा चल रही थी, आज उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वो इस बार माता जी आई ही नहीं, शर्मिला माता जी। वो बोलने लगी बार बार रिपीट करा के याद करा दिया, एनवी 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 बहुत हो गया। आगे चले गए जब मैं मेरे भी कंट्रोल में नहीं था। हे भगवान। ओके, तो पृथु महाराज की कथा चल रही थी। तो क्या हुआ था जी पृथु महाराज के में? पृथु महाराज क्या करना चाह रहे थे? अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे थे। उन्होंने कितने करना चाह रहे थे? 100। कोई भी जना एज पर द स्क्रिप्चर्स अगर 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो एंटाइटलमेंट में उसे क्या मिलता है? इंद्र का पद मिलता है। तो जब 99 हो गया और 100th वो करने लगे तो इंद्र हरिनाम नहीं कर रहा था, तो एंजाइटी बढ़ गई। या तो वो आगे कर रहा होता है हरिनाम संकीर्तन तो शांत बैठा रहता, फिर वो और आगे जा सकता था, ब्रह्म लोक से होते हुए सत्य लोक से होते हुए फिर वो कर सकता था। एनीवे, तो अब इंद्र को मिर्ची लग गई। उसने कहा भैया अगर इसने 100वां कर लिया तो मेरी पोजीशन गई। देखिए गल्फ में भी ऐसे ही है, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर आप ठीक से काम नहीं कर रहे तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो आपके बॉस को खतरा है, मेरी सीट खा जाएगा। और अगर आप ठीक से काम नहीं कर रहे तो उसको खतरा है कि ये काम नहीं कर रहा, मुझे करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे उसने कहा ये तो मेरी गई सीट गई भैया, तो उसने क्या किया जी? घोड़ा चुरा लिया। एक बार नहीं, बार बार चुरा लिया। एक बार चोरी करने के लिए उसने साधु का वेश धारण किया, एक बार कपाल का धारण किया, तरह तरह के वेश। तो भागवत में बताती है कि जो भी इस तरह के वेश हैं वो सब नकली पूजा की प्रथा इंद्र ने शुरू करी, क्योंकि वो इस तरह के करता रहा। तो पृथु महाराज को उसका लड़का बार बार जा रहा था, घोड़ा लेके आ रहा था आकाश में जाके। प्रभु ऊपर मैनेजमेंट को पता नहीं चल रहा था। है ना, सारा मैनेजमेंट है। अभी मैनेजमेंट आ गया ना, चेयर पर्सन इज अबाउट टू अराइव। देखो भगवान को क्या चाहिए? वो तो सत्य चित्त आनंद है। सत्य मतलब एटर्नल, चित्त मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब पूरा ब्लिस है। तो फिर जरूरत ही क्या है सब करने की? कंप्लीट है वो तो। लेकिन भाव उनको आनंद, उनको आदान प्रदान चाहिए। अगर आदान प्रदान आनंद का नहीं होना है तो फिर मर्ज हो जाओ और फिर लटके रहो कहीं पे, एक सस्पेंडेड पार्टिकल इन द एंटायर ओजोन लेयर। ठीक है जी, जन्म मृत्यु से बच गए। तो उनको भी आनंद चाहिए, उसके लिए सारी गेम बना रखी है उन्होंने। अब उनको ये पता है कि बहुत सारे सोल्स ऐसे हैं जिनको कुछ मटेरियल डिजायर है भाई, तो कहा भाई ठीक है चलो फिर इसी को लेके आनंद ले लेते हैं। इनको बना देते हैं एक नकली एनवायरनमेंट बना देते हैं जिसके अंदर इनको छोड़ देते हैं और इनको सोचने दो कि ये ओनर है। जब ये थक जाएंगे, ये सारी गेम थकाने के लिए है जी, आप खुद सोच लो। किस एंड में क्या हो रहा है? थक हार के, हाँ वो एक आपने देखा होगा जो सी गर्ल्स होती हैं, वो शिप के ऊपर बैठी होती हैं। अब वो जाती हैं, उड़ती हैं, उनको सी शोर नहीं मिलता है, फिर वापस आ जाती हैं, फिर जाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं। फिर उनके समझ में आ जाता है कि हमारे कंट्रोल के बाहर, फिर वो बैठी रहती हैं, वेट करती हैं आने दो। बंदरगाह को आने दो, उस वक्त देखेंगे, सरेंडर कर देते हैं वो। ऐसे ही है, चलो
गन्ने का रस। उसके बाद में भगवान कहते ठीक है भैया, वो खुद ही कहता है थक गए सर, अब आप बहुत हो गया, समझ में आ गई हम ओनर नहीं है। अच्छा जी, तो अब क्या हुआ, जब 100वां करने लगे तो पृथु महाराज ने बोला कि एक काम करते हैं, इसको तो मैं मार ही देता हूँ, इंद्र को, ये चोरी कर रहा है, बार 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 बार, इसको खत्म करो। तो वो जैसे ही उठ के मारने के लिए जाने लगे इंद्र के पीछे, तो जो यज्ञ करवा रहे थे पंडित लोग, उन्होंने कहा आप क्यों अपने हाथ गंदे करते हो, आप आराम से बैठो। मतलब उस वक्त भी हायर्ड किलर्स पर थे। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, हम जो है देखो भाव की दृष्टि से लेना भैया, वरना ये होगा ये क्या बकवास है, ये ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला आप मत मारो, हम ऐसे मंत्रोच्चारण करेंगे कि इंद्र खिंचा हुआ चला आएगा और सीधा भस्म हो जाएगा इसमें। उन्होंने कहा वेरी गुड, लेट्स डू इट। तो जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ के वो बोल नहीं वाले थे, उतने में क्या हुआ जी, पहले कौन प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने बोला भाई ये यज्ञ किसके लिए है, भगवान के लिए। भगवान के अंदर कौन है, सारे देवता, उसमें इंद्र भी है। अब तुम इंद्र को ही मारना चाह रहे हो तो तुम यज्ञ क्यों कर रहे हो फिर, ये तो काउंटर प्रोडक्टिव है। ये नहीं करना चाहिए तुम्हें, ये सब मत करो तुम। अब सोचो आप उसको कैसा लग रहा होगा, पृथु महाराज को, गलती कर रहा है वो, सुना रहे बड़े लोग मुझे, ऑफिस में ऐसा होता है। लेकिन ये भक्त का लक्षण है, उसकी समझ में आ गया। उन्होंने बोला जो चीज बाद में भगवान भी बोलेंगे कि भाई तुम्हारा काम है इस संसार को चलाना, यहाँ पे नागरिकों को सुरक्षा देना, ना कि 100 यज्ञ करना। तुम अपना काम करो ना भाई, तुम तो भगवान के अवतार हो, तुम कहाँ इस पचड़े में पड़ गए। तो उसको समझ में आ गई कि हाँ ये ठीक है, और उसने पीस कर लिया इंद्र के साथ। उनके जाने के बाद में फिर कौन प्रकट हुए जी, भगवान स्वयं प्रकट हुए। भागवतम में है कि जब शुरू हुई थी यज्ञ, जब अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ था, उस वक्त ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी तीनों मौजूद थे। लेकिन जब ये भागवतम में आता है कि अब वो प्रकट हुए, इसका मतलब क्या है, वो जब ये सब हो रहा था, हाँ वो चले गए थे। क्यों चले गए थे, जहाँ पुंठा है, हाँ जहां पे एनवी है, ये आपस में दोनों एनवी कर रहे थे। वो एनवी कर रहा था कि ये 100 नहीं करे, और ये कह रहे थे कि एनवी में द्वेष भी है, वो द्वेष कर रहे थे भाई 100 करने दो ना, उसको पद नहीं चाहिए लेकिन उसको एंटाइटलमेंट मिल जाएगी। तो क्योंकि वो भक्त था तो उसके समझ में आ गया, तो उन्होंने ये बोला। फिर अब भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने प्रकट होकर के क्या बोला, चलिए जी। श्री भगवान उवाच एष ते अकर्षित भंगम हयमेध शतशः। This is there on the which PPT which I have circulated. Hare Krishna Prabhu ji. 422 है ये. This is the first slide on that. Okay, please repeat. एषा ते अकर्षित भंगम 422 4.20.2 हयमेधा शतशः क्षमापत्य आत्मानम अमुष्य क्षन्तुम अर्हसि। श्री देखिए जी, अब जो आप लोग फर्स्ट टाइम आए, आपको लगता है संस्कृत मुश्किल है कि आसान है, बोलिए जी। मतलब स्कूल में तो पढ़ा था, हाँ। अभी पूरा समझ में तो नहीं आता। एग्री, मुझे भी नहीं आता है, तो इसलिए कोई ऐसा आंसर नहीं है कि आप वी आर इन द सेम बोट। लेकिन अब देखिए किस तरह से आचार्यों ने इसको तोड़ करके शब्दों को बताया है कि जिसको पढ़ करके हमें समझ में आ जाती है कि संस्कृत से सीधा समझ में आती। चलिए देखते हैं। श्री भगवान मतलब क्या हुआ जी, उवाच, ठीक है जी। एषा ते, एषा ये, हाँ, अकर्षित भंगम, भंग मतलब इसने, भगवान ने बोला इसने, यानी इंद्र उसके उनके साथ में आया।
तो भगवान ने कहा ये जो एश है, ये जो इंद्र है, ये इसने तुम्हारा भंग किया। क्या भंग किया? हाय मेधा, हाय मतलब हॉर्स, मेधा यज्ञ का नाम, अश्वमेध यज्ञ, हाय मेधा। हाँ, शतस्य, शतक बनाया, किसे कहते हैं? 100। हाय मेधा शतस्य, इसने क्या भंग किया? तुम्हारा 100वां अश्वमेध यज्ञ भंग किया। क्या बात है, जय हो महाराज, वाह 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 वाह, भूषण प्रभु की जय। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, बड़ा ही रखो प्रभु। नहीं, आप लोग छोटा देख पाओगे, मेरे को दिक्कत होती है इसलिए मैं यहाँ से देख लूंगा। हाँ जी, ठीक है। भगवान ने बोला ये जो इंद्र साथ में आया है, इसने तुम्हारा 100वां यज्ञ भंग किया है। अब वो क्या कह रहे हैं सुनिए जी। क्षमा पत्या, क्षमा मतलब इसको फॉरगिव। पत्या, पत्या का क्या मीनिंग है देखो जी। क्षमा पत्या, क्षमा मतलब माफी, क्षमा पत्या ये तुमसे माफी मांग रहा है, क्षमा पत्या का मीनिंग। देखो इंद्र की हिम्मत नहीं पड़ रही है मुंह खोलने की। भगवान उसकी तरफ से कह रहे हैं ये मेरे साथ आया है, ये तुमसे माफी मांग रहा है। देखिए भक्तों का मतलब कितना मान है। इंद्र के बोलती नहीं निकल रही है। क्षमा पत्यम, इस ये क्षमा मांगने आया है। आत्मानम, आत्मा की दृष्टि से तुम देखो, अभी अगली लाइन में आएगा। आत्मानम अमुक्ष्य, अमुष्य का मतलब है इसको। क्षंतुम, इसको क्षमा कर दो। क्षंतुम अर्हसी, अर्हसी मतलब यू ऑट टू फॉरगिव हिम। देखो भगवान का डिप्लोमेटिक, पूछ नहीं रहे। आई विल गिव यू द नेम ऑफ द वॉलंटियर्स। इस तरीके से ये वॉलंटियर्स आर सपोज्ड टू गिव देयर नेम्स, राइट? बट ही इज सेइंग आई विल गिव यू द नेम्स ऑफ वॉलंटियर्स। तो बोला भैया ऐसा है, ये जो है इंद्र, ये मेरे साथ में आया है, इसने आपका 100वां यज्ञ को भंग किया है, इसे तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। पूछा नहीं, बता दिया। मैनेजमेंट डिसीजन। पहले आपस में लड़ते रहो ये वो, फिर बाद में भाई झगड़ा बंद करो, ये करना है तुम्हें, काम खत्म। लेकिन आप देखिए ये भक्त है, मेरे साथ होता तो मैं कहता कमाल है यार, ऐसे कैसे माफ करते हैं इसे। इतनी मुसीबत से मैं कर रहा था, 100 तक पहुंचा, 100 तक पहुंच गया था, और ये भाई आकर के घोड़ा चुरा रहा है और मेरे को इसको लेके आ गए, बोले क्षमा। पर भक्त है ना। मतलब ये है कि जहां पे एनवी होती है वहां पे क्षमा होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जहां भगवान सेंटर में होते हैं और फिर अगर भक्तों के बीच में एनवी होती है तो प्रभुपाद राइट्स आराम से एनवी कैन बी एडजस्टेड, द कॉज ऑफ द एनवी कैन बी एडजस्टेड। क्यों? क्योंकि पर्पस जो है वो कॉमन है, इसलिए उसको तकलीफ नहीं हुई माफ करने में। कोई और होता है तो बोले पहले ब्रह्मा जी मुझे समझा रहे हैं, भाई इसको समझाओ ना, ये क्या करेगा वो भी है आगे, लेकिन पहले तो इसको बोला जा रहा है। लेकिन वो भक्त है, वो कह रहा है कोई बात नहीं, ठीक है भाई, आप यू शुड। सो प्रभु जी कैन यू रीड द ट्रांसलेशन प्लीज। Lord Vishnu. Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead said, My dear King Prithu, Indra, the King of Heaven, has distributed your execution of 100 sacrifices. Now he has come to me to be forgiven by you. Therefore, excuse him. Krishna is saying, look from Atma platform and not bodily platform. हाँ, वो वर्ड जो आत्मा नाम आया, वो पृथुक नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि बॉडीली प्लेटफॉर्म से माफ करना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ में भी अगर मैं प्रभु जी से एनवी करता हूँ और कुछ है मेरे को दिक्कत की यार ये सही नहीं है, मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं इस दृष्टि से देखूं कि ये भगवान के अंश है, ममेवांशु जीव लोके जीव भूत सनातना, ये एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, मैं भी अंश हूँ, मैं भी एक अंश हूँ। भैया थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेना, जिसका भी है कम कर लेना, चलने दो, वो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बस। सॉरी, हाँ कहाँ था मैं? हाँ, तो
आत्मा के प्लेटफॉर्म से माफ करना बहुत इजी है। भाई ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, ये भी भगवान के अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूं, तो ठीक है, वो आपस में जो हुआ सो हुआ, वो तो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हो रहा था ना। तो भगवान ने कहा तुम आत्मा के प्लेटफॉर्म से देखोगे तो माफ कर पाओगे। दोष मतलब बॉडी में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो बॉडी से हो रही है ना, 3 गुणों से। 2 बॉडीज इंटरैक्ट, मेरी और आपकी बॉडी इंटरैक्ट कर रही है, आपका और मेरा पर्पस अलग है। मैंने आपसे एनवी कर लिया, आपने भी द्वेष कर लिया, चलो झगड़ा चालू हो गया। लेकिन अगर मेरे दिमाग में थॉट है ये प्रभु जी तो भगवान के अंश है, आपके मन में भी है ये तो भगवान का अंश है, तो माफ करा जा सकेगा। इसलिए भगवान ने वर्ड ये काम में लिया कि आत्मा की दृष्टि से देखो, ये आया है मेरे साथ में, इसको तुम माफ करो भाई, यू ऑट टू फॉरगिव हिम। क्यों भाई, तुम्हारा पर्पस है नहीं राज्य लेना, और इसका तो पोजीशन ही इंद्र का है, इसका राइट है, जब तक इसका टाइम ओवर नहीं होता, इसका राइट है टू बी द किंग ऑफ द हेवन, और आप सोमा करके आप फंसवा दोगे। तो इस तरह से भगवान ने कहा। ठीक है जी प्रभु, समय क्या हो गया? नहीं, 9:30 वी विल स्टॉप। 15 minutes left. ओके, वेरी गुड। चलिए जी, प्लीज रिपीट। अब भगवान उसको, और इतने पे नहीं छोड़ा भगवान ने। देखो भगवान अपने पे आ जाते हैं ना तो मतलब, लेकिन ये है भगवान कुछ भी करे एंड में कल्याण ही होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ती है, बस इतना ही है। अब मुझे लगता है ये कुछ थोड़ा नहीं है मेरे लिए। जैसे एक व्यक्ति था, वो भगवान के पास गया, उसने कहा भगवान मुझे $1 बिलियन दे दीजिए, आपके लिए क्या बड़ी बात है, इट्स नथिंग फॉर यू। भगवान ने कहा ठीक है। बोला है रियली? बोले डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। वो कौन सा वाला 2 मिनट्स है? ब्रह्मा जी वाला। मतलब ही हैज टू वेट फॉर सेवरल युगास इसलिए भगवान से पंगा नहीं। तो भगवान ने बोला, प्लीज रिपीट, पुरुष यदि मुह्यन्ति त्वदृशा देव मायया श्रमेव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। अब उनको एक माफ करने के लिए खाली नहीं कह रहे हैं, ऊपर से ये और कह रहे हैं, पुरुषा यदि मुह्यन्ति, मुह्यन्ति मोहित, पुरुषा मतलब पर्सन लाइक यू, पुरुष तुम जैसा, यदि मुह्यन्ति अगर तुम जैसा मोहित हो जाता है, त्वदृशा तुम्हारे जैसा, देव माया अगर मेरी शक्ति से तुम्हारे जैसा व्यक्ति मोहित हो जाता है, तुम तो भगवान के इनकारनेशन हो, तुम नृप हो, पूरे किंग हो, अगर तुम्हारे जैसा आदमी बेविल्डर हो जाता है, श्रम एव परम जातो, जो भी तुमने अब तक किया है वो खाली श्रम एव ही केवलम मतलब इतनी हो तुमने ऑस्टेरिटी कर रहे हो, क्या है खाली श्रम, दीर्घया वृद्ध सेवया, वृद्ध का मतलब क्या है जी? बुढ़ापा, सेवया मतलब जो वृद्ध लोग यानी जो गुरुजन लोग हैं, उनके जो तुम तब से सेवा करते चले आ रहे हो बचपन से आज तक, वो श्रम एव ही केवलम। अगर इतना सब करने के बाद भी तुम्हारी ये सिचुएशन है मतलब ये और भगवान टॉन्ट कर रहे हो, बताओ देखो हम लोग आनंद ले रहे हैं, बेचारे पृथु महाराज की सोचो एक यहाँ भगवान ने इंद्र को नहीं तो कुछ बोला, अभी आगे आएगा पर पहले क्या है, इंद्र भोग योनि में है, यानी कि देखिए इंद्र इज अ पोजीशन, वन पर्सन इज नॉट एटर्नली इंद्र, इंद्र इज अ पोजीशन, डिफरेंट पीपल बिकम इंद्र एज पर देयर गुड deeds. Sometimes if nobody is available, Krishna himself becomes, Vishnu ji himself becomes Indra also, ऐसा भी है। तो उसको तो उतने टाइम तक भोगना ही है, उसका भी नंबर आ रहा है, लेकिन इनका ड्यूटी क्या है एज अ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, पृथु महाराज का, कि भाई पब्लिक को सिक्योरिटी दो, सेफ्टी दो, एजुकेशन दो, इनका ध्यान रखो। ठीक है यज्ञ कर रहे हो तो 99 और 100 का फर्क तुम्हें क्या पड़ता है, तुम्हें तो इंद्र का पद नहीं चाहिए ना, तो पहले इनको इसलिए। लेकिन बड़ाई पृथु महाराज की है इसमें कि उनको ये नहीं लगा जो हमें लग रहा है, यार उसको बोलो ना, मेरे को क्यों आ गए बोलने, बिकॉज कृष्णा इज इन द सेंटर, ही हैज एडजस्टेड हिज कॉज ऑफ एनवी। कोई बात नहीं, आप कह रहे हो ना, आप सुप्रीम पर्सनैलिटी हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसके बहुत एडवांटेजेस मिलने वाले पृथु महाराज को आगे जाके,
बहुत सारे, जस्ट बिकॉज ही एक्सेप्टेड। मतलब क्या है कि एक्सेप्टिंग द वर्डिक्ट बहुत इजी है। देखिए कष्ट क्या चीज है, डिजायर, कष्ट क्या चीज है, मेरी सिचुएशन ये है और अब बिगड़ के ये हो गई, मेरी सिचुएशन ये है, मेरी तबीयत खराब होकर ये हो गई। जब तक मेरा माइंड ये एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरी ये सिचुएशन है, वही डिस्ट्रेस है। अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हूं मैं ऐसा, अभी है ये प्रॉब्लम, भगवान जो करना है करो, तो डिस्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो भगवान का बनाया हुआ ऐसा गेम है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि, बट दिस इज हाउ इट इज। इसीलिए जितनी डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी भगवान पे, उतना एंग्जाइटी कम होती जाएगी। भाई ठीक है भगवान कर रहे हैं, भाई ठीक। एक्चुअली में तो वही है ना, हम सर्वेंट है, कंट्रोलर तो है नहीं, करें क्या। लेकिन भगवान चाहें तो हमारी ऑर्बिट चेंज कर सकते हैं, जैसे नारद जी की चेंज की थी। उदासी पुत्र से सीधा भक्त्यावेश अवतार हो गया उनका, ऑर्बिट ही चेंज, उनकी पावर चेंज कर दी। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा भाई हाँ प्रभु कैन यू रीड, हाँ यस प्रभु यू हैव अ क्वेश्चन। तो उन्होंने फिर ये यज्ञ शुरू ही क्यों किया? हाँ। भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान के स्वयं अवतार भी हैं, तो यज्ञ शुरू ही गुड क्वेश्चन। The yajna was actually started for Lord Vishnu. That is why the three were present there when it started. Bhagavatam tells Brahma ji was there, Shiv ji was there, Vishnu ji was there. Because it is part and parcel of the activities of the king to do different yajnas. So that is okay, you can do. But don't make it a point कि 100 ही करूँगा साहब, अब तो मैं, अब तो मेरी उस पर आ गई है बात, छोड़ूंगा नहीं तेरे को, तू क्या चीज़ है, मैं तेरे को ख़त्म कर दूँगा, मैं 100 जरूर करूँगा। हाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, आपने किया 99। नाउ यू लुक एट इट, पृथु महाराज इज मोर फेमस फॉर डूइंग 99 यज्ञ रादर देन डूइंग 100। विच अदर किंग वी रिमेंबर दैट ही डिड 100 टाइम्स अश्वमेध यज्ञ, कौन सा है? पर कितनों को ये, मतलब हार्डली एनीबडी वुड रिमेंबर, बट 99 का सबको मालूम है। एग्जैक्टली शुक्राचार्य ने तो बोला था, ये लूट के ले जाएगा तुमको, तुम इसको कुछ मत दो। ये छोटे छोटे पैर दिख रहे हैं ना, तीसरा पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। लेकिन उन्होंने कहा भाई प्राण जाए पर वचन ना जाए, दूंगा जरूर मैं। क्यों? दिस इज द ओनली प्लेस वेयर वन शुड नॉट एक्सेप्ट गुरुज ऑर्डर। इफ ही इज और शी इज ऑर्डरिंग टू गो अगेंस्ट द लॉर्ड, देन गुरु की पदवी खत्म हो गई, बिकॉज गुरु का काम ही कनेक्शन है भगवान से। अब वो बोल रहा है मत करो, अब आप देखो, बिकॉज ही एक्सेप्टेड एंड ही गेव हिम द 3 feet of donation, Vishnu ji had to become on his own. He is today stands as a security guard in front of the kingdom of Bali Maharaj. कितना सस्ता है डील। वैसे भी आपका कुछ नहीं था, आपने दे दिए 3 पग उनको, आपको दे दिया पाताल में, और वो जो है भगवान स्वयं वो आपके सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं। मतलब क्या है ये? इट्स नॉट अ बैड डील, राइट? डील और नो डील। ओके जी, तो भगवान ने, हाँ जी, कैन यू रीड प्रभु क्विकली ट्रांसलेट? 9:30 हो तो मुझे रोक देना भाई, थोड़ा लाउडली प्रभु। If a personality like you, who are so much advanced because of executing the instructions of the previous acharyas, is carried away by the influence of materialism, then all your advancement may be considered simply a waste of time. अब वो सोच रहा है एक तो मैं 100 तक पहुंचा, ऊपर से और सुनने को मिल रहा है। बट रियलिटी है, he started the yajna not for getting that position, but now it has become a envious thing. No, I will do it. No need भाई, तुम अपना काम करो ना यार, उसको ठीक है। ओके जी, हाँ माता जी, कैन यू रीड द ट्रांसलेशन प्लीज? No need. तो सॉरी प्रभु, अगले पेज पे जाइए। हाँ है, सॉरी, हाँ ठीक है। लॉर्ड विष्णु Lord Vishnu informed Prithu Maharaj that although the sacrificial performances set an example for ordinary people, there was no need for such sacrificial performances as far as his personal self was concerned. आपको जरूरत नहीं है ये सब करने की, इट्स ओके, फॉर नो नीड फॉर यू।
हाँ जी, आप पढ़ेंगे, आप प्लीज थोड़ा बड़ा करना प्रभु। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट स्क्रॉल। ये फोटो है प्रभु, पीडीएफ नहीं है। ना ये नहीं, पीडीएफ आ नहीं रही यहाँ पे, पता नहीं। अच्छा, ओके, इससे नेक्स्ट वाला 426 है प्रभु, ऊपर ऊपर। हाँ, ऊपर ही था शायद मेरे ख्याल में। जूम इन करेंगे। हाँ हाँ जी, माता जी आप पढ़ेंगी? उस पे वो फोटो पे वो आया हुआ है। नहीं आप पढ़ेंगी? वो सबसे ऊपर आ गया, आ गया। हाँ, ये लगेगा ये रही। नहीं वो नहीं होगा प्रभु जी की। आ तो रहा था ना 426। उस पे वो जो पेज नंबर जो है ना, उस पे ढके एक 4 शब्द उसमें जो ढके। अच्छा, 426. 6। How can a highly learned person who has absolutely no affinity for the bodily conceptions of life be affected by the bodily conception in regard to house, children, wealth, and similar other bodily productions? तो विष्णु जी ने कहा भाई इतने तुम लर्नड हो, यू शुड नॉट हैव एफिनिटी टू बॉडीली कंसेप्शन, दैट यू हैव टू डू दिस एंड ऑल दीज थिंग्स फॉर यू इट इज। हाँ जी, नेक्स्ट 429 you will read Prabhu. The Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, continued, my dear King Prathu, when one situated in his occupational duty engages in my loving service without motive for material gain, he gradually becomes very satisfied with it. Please repeat. Swadharmenu mam nityam nirashi श्रद्धयान्वितः भजते शनकैस्तस्य मनोराजन प्रसीदति। तो उन्होंने अब इस श्लोक में वही बता रहे हैं कि तुम अपना काम कैसे करो कि पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहो। ये हमारे लिए है, रोजमर्रा के लिए उनको बताया जा रहा है, पर हमारे लिए कि किस तरह से काम करने से वन कैन बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। देखिए, यह स्व का मतलब खुद, धर्मेण खुद का धर्म, माम नित्यम मैं, नित्यम मतलब हमेशा, निराशी बिना किसी आशा के, श्रद्धयान्वितः श्रद्धा के साथ, भजते शनकः शनय शनय धीरे धीरे, शनकः तस्य हिज, मनः राजन प्रसीदति, मनः हे राजन प्रसीदति। अगर तुम आनंदित होना चाहते हो, अपने रोजमर्रा की जो ड्यूटी कर रहे हो उसको, तो खुद का जो ऑक्यूपेशनल स्वधर्मेण, अब तुम्हारी जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है उसको बिना आशा के, श्रद्धा के साथ मेरे को भजते हुए करो, तो तुम रहे राजन प्रसीदति, तो तुम प्रसन्न रह पाओगे। अपने लिए मत करो, जो भी कार्य कर रहे हो मुझे वो ये तत्कुरुष्व मत अर्पणम, ये करते हुए अगर करोगे तो देन मनोराजन प्रसीदति। हाँ जी, आप पढ़ेंगे, आपका ये ट्रांसलेशन पढ़िए। हाँ, ट्रांसलेशन पढ़िए। ये रहा दिख नहीं रहा, तो आप आगे आ जाओ, फिर दिखेगा। आ जाओ, प्रसाद खिला रही है क्या आप? हैं? अच्छा ठीक है, ओके, आप पढ़िए। हाँ, आप पढ़िए। The Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, continued, my dear King Prithu, when once situated in his occupational duty engages in my loving service without motive for material gain, he gradually becomes very satisfied with it. अब मेरा यही प्रॉब्लम है, मैं सुबह से शाम तक नौकरी करके आता हूँ, शाम को सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसका क्या रीजन है? ड्यूटी तो हमने करी अपनी, लेकिन नॉट एज अ डिवोशनल सर्विस, कि भाई आपका काम, ये काम आया कहाँ से? संसार में आया। संसार किसने बनाया? तो यानी भगवान का ही काम है। स्कूल में भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं क्लास में, शनाया जो पढ़ती है स्पॉटलाइट जोन वो ऑस्टेरिटी है, वो भागवतम है बच्चों की। क्यों?
क्योंकि भगवान का काम कर रहे हैं। घर में प्रसाद बना रहे हैं, भगवान को ऑफर करिए, भगवान का काम हो गया। झाड़ू दे रहे हैं, भगवान का काम हो गया। बच्चे को तैयार कर रहे हैं, खुद नहा रहे हैं, वो क्यों भगवान का काम है। हाँ, सर्वस्वच्छाम हृदय सन्निविष्टो, मैं अंदर ही बैठा हूँ, तो सुबह सुबह नहाना, इस टेम्पल को क्लीन करना है, वो भी भगवान का काम है। कौन सा काम ऐसा है जो भगवान का नहीं? एनी गेसेस? हाँ, सही बोला। Envy can be adjusted again if in the center. Yes, Krishna is in the center. तो ये जी प्रसिद्धति का। अब कोई कह सकता है अर्जुन को क्यों नहीं बताया ये? अर्जुन को भी बताया। उसको क्या बताया? माम अनुस्मर युद्ध च। लेकिन वहां प्रभु जी उन्होंने बोला तुम युद्ध करो। हाँ, ड्यूटी करो, यहाँ भी यही कह रहे हैं। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभु कि किसी कोई भी मटेरियल चीज के मोटिव से मत करो। हाँ, तो वो कैसे कर सकते? ओह वंडरफुल। 927 भगवद गीता नोट कर लीजिए। जो भी कार्य, दो तरह के कार्य हैं, एक है पाप है, एक है पुण्य। ये सांसारिक है, इसमें पाप वाला तो छोड़ दीजिए, वो तो भगवान को ऑफर हो नहीं सकता। जो भी हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, आप माता हैं तो बच्चे का ध्यान रखना, हस्बैंड का भी ध्यान ही रखती हैं माताएं, हस्बैंड घर का देख रखते हैं। जो भी वो कर रहे हैं उनको सिर्फ कनेक्शन करना है कि भगवान के लिए कर रहे हैं, बस। यत करोसी यदस न, जो भी करते हैं उसको मन से, सुबह आप बोलिए उठने के बाद में भगवान के सामने, आज का दिन मैं आपके लिए काम करूंगी, और जो भी होगा वो आपको ऑफर है। अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप अपने आप ले लेना। तो शाम को हो सकता है देना भूल जाए। शाम को आप गए, आपने कहा जी आज 2 दिन पर काम किया था, आपको ऑफर कर दिया, बस हो गया। कैसे ऑफर? आप बोलोगे तनख्वाह तो दी नहीं मैंने आपको, मैंने क्या ऑफर किया आपने। क्योंकि जब आपने वाइफ, बच्चे, घर की मेंटेनेंस, वाइफ जो है प्रसाद बना रही है, बच्चे को तैयार कर रही है, ये सारा काम भगवान का ही है, उसको आप भगवान को ही ऑफर कर रहे हैं। वही है, आप शरीर को ऑफर कर रहे हैं या आत्मानम को ऑफर कर रहे हैं। अगर आप भगवान का, सब लोग भगवान के अंश हैं, ममे वांशु जीव लोके, अगर उस दृष्टि से काम, एक दूसरे को याद, ये सत्संग क्या है, आप मुझे याद दिला रहे हैं कल, अब मेरे को कल लगेगा मैंने काम किया, तो आप बोल सकते हैं प्रभु जी एक्सक्यूज मी, आप भगवान के लिए काम कर रहे हैं। गलत मत सोचो आप। क्यों? क्योंकि आप भगवान के अंश हो, आप जो करते हो उनके लिए करते हो। बस सिर्फ इतना सुबह शाम कहना है, भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। देखिए क्या है, मैं मन में सोचता हूं मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा, पर एंड में मैं कर देता हूं। ये मेरे ख्याल में सबका ही होगा शायद, मेरा तो है ही। मतलब इसका क्या रीजन है? मन में तो मैंने कहा था मैं नहीं करूंगा। इसका रीजन ये है कि मेरे को मना करने की पावर नहीं है मेरे पास मन को। वो पावर भगवान का नाम गुणगान स्मरण करने से होती है। ये सीक्रेट है जी। भगवान का नाम लिया जाएगा तो आप में भगवान पावर देंगे नहीं को नहीं कहने की। नहीं तो हाँ होता शुरू नहीं से है, एंड में हाँ हो जाती है। गलत से गलत काम भी, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। तो मुझे आवश्यकता है ज़्यादा। तो आपका आंसर क्लियर हो गया जी। जो भी करते हैं आप उसे सिर्फ कनेक्ट कर दीजिए भगवान से। ऐसा कोई कार्य है जो आप नहीं कनेक्ट कर सकती? फॉर एग्जाम्पल अभी I'm working somewhere in office, ठीक है, तो मैं कुछ काम करती हूँ, यस, तो ऑफ कोर्स आई विल एक्सपेक्ट इन सम टाइम कि मेरा प्रमोशन हो, ऑफ कोर्स। या फिर मेरा इंक्रीमेंट। आप मांगिए भगवान से, मुझे प्रमोशन दीजिए, मैंने आपका काम अच्छे से किया है, पर आपने भगवान को ऐड कर दिया ना प्रमोशन में। और इवन कि प्रमोशन के बाद में आई विल मोर इफेक्टिवली वर्क फॉर द। जरूर, मतलब जैसे भी करके आप देखिए, ऐसा है भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? पड़ोसी से। जो हमारा होता है उसी से मांग सकता है आदमी। हाँ, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन। आपको कोई कामना नहीं है, आप भगवान का नाम लीजिए। आपको काम नहीं कामना है, आप भगवान से मांगिए। आपको लेकिन क्या है? तीव्रेण भक्ति योगेन, भगवान से तीव्र भक्ति। तो आप प्रमोशन मांगती हैं, जरूर मांगना चाहिए,
लेकिन साथ में एंड में एक कॉमा लगा के बोल देना चाहिए, अगर आप ठीक समझो तो। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, मैंने मांगा 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 और ऐसी बुरी तरह से फंसा कि अब मांगना पड़ रहा है, भगवान जो दिया था वापस ले लो। फिर उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है आप आज मांगा मिल गया, अब बोला नहीं चाहिए तो छोड़ दिया। भगवान भी कहते हैं पर तसल्ली कर ले भाई, अब तू पहले भुगत, मांगा क्यों था। लेकिन वो हटा लेते हैं अगर सच्चे हृदय से प्रार्थना की जाए तो। मुझे लगता है, ऐसा सुना है मैंने, कि वो कर देते हैं। डाउट क्लियर है जी? जो भी करें भगवान से कनेक्ट कर दें। और अगर कोई डाउट है तो कहते हैं अगर आप ठीक, डाउट नहीं तो बोलना ही चाहिए अगर आप ठीक समझे तो। क्योंकि हमको, अगर मैं बाहर खड़ा होता हूँ कितनी दूर तक देख सकता हूँ मैं? कहाँ तक? मेट्रो तक। वो भगवान कहाँ तक देख रहे हैं? मेट्रो के बाद भी देख रहे हैं वो। तो इसलिए बेटर है कि उनके जजमेंट पे छोड़ा जाए। लेकिन काम ऐसे करना चाहिए जैसे बहुत बड़ा प्राइज मिलने वाला है। क्यों? वही फिर से बात, क्योंकि भगवान का काम है। बस फिर देखो आप, लोग हैरान रह जाएंगे कि चक्कर क्या है ये। काम टाइम भी कम लगाता है ऑफिस में, काम भी जबरदस्त करता है। और जैसे आप मान लीजिए किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी बड़े आदमी से, अब आपको घबराहट हो रही है। सीनियर मीटिंग में आपका क्या रोल है आपका माता जी? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब आप जा रही हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं, तो आप किसको दिखाती हैं? सीईओ को दिखाती हैं या क्लाइंट को? क्लाइंट को। अब मान लीजिए क्लाइंट का ग्लोबल सीईओ आ रहा है, और अब आपको, इसको मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो अभी ऐसे चलता ही रहेगा ये। क्या समय हो गया जी? 9:35। ओके, बस वी टेक दिस एंड व्हेन क्लोज, देन ऑफलाइन वी कैन टेक। अब मान लीजिए ग्लोबल हेड आ रहा है और आप प्रोजेक्ट हेड हैं और आपका भी सीईओ पीछे खड़ा हुआ है, प्रेजेंटेशन आपको करनी है और आप उस सीईओ से आज तक मिली नहीं है, और जो उसके साथ में काम करने वाले हैं अभी तक वाले, वो थोड़े होस्टाइल हैं। अब आप क्या करेंगे? तो आपको जाने के पहले अंदर से प्रार्थना करनी है कि भाई भगवान, आप ही इस ग्लोबल सीईओ के अंदर बैठे हुए हैं, आप ही इसी बुद्धि देने वाले हैं। मैंने अपना पूरा जोर लगाया, अगर आपका पूरा जोर नहीं लगाया तो ये फिर प्रार्थना व्यर्थ जाएगी। आपने 200% लगाया है उसमें अपना। सक्सेस हो नहीं हो, डजंट मैटर। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सक्सेस भी सक्सेस है और फेलियर भी सक्सेस है, क्योंकि सक्सेस और फेलियर मटेरियल है, वहाँ ये है ही नहीं, वहाँ है ही सक्सेस खाली। अब आप अंदर जाइए, फिर आप देखिए क्या होता है, आप करके देखिए। अगर वैसा हो गया उसका विचार बढ़िया वाला जो आप सोच रहे हैं तो बात बनी गई। अगर मान लीजिए फिर भी वो आपसे बिगड़ गया, तो आप ये कंक्लूड मत करिएगा कि भगवान मैंने तो आपसे प्रार्थना करी थी, ये हो गया। आप थोड़ा वेट करिए, हो सकता ही नहीं, कुछ समय बाद आपको पता पड़ेगा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा हो गया। इसलिए इंसल्ट अगर शांति से झेल ली जाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल असॉल्ट एंड ऑल, ऑफिस की इंसल्ट कई बार बेमतलब होती है, लेकिन अगर आपने उसको भगवान का प्रसाद समझ के अपना पूरा बोल दिया, ऐसा नहीं है कि आप मुंह दबा के आ गए, फिर भी लेकिन हुई इंसल्ट, कुछ ना कुछ उसमें एंड में अच्छा निकलेगा। ये भागवतम में एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, जैसे विदुर महाराज का इंसल्ट हुआ था। विदुर का इंसल्ट हुआ था, दुर्योधन ने घर निकाल दिया था उसको। निकालने के बाद में फाइट हुई और दुर्योधन और सारे कौरव मारे गए। अगर विदुर महाराज नहीं निकाले गए होते तो उनकी तरफ से लड़ रहे होते और उनका क्या होता? उस वक्त तो बहुत बुरी इंसल्ट लगी थी। भगवान के परम भक्त हैं। ठीक है जी, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। यू विल डू नमस्ते नरसिम्हा? डू you want this or not? Whatever you like, I'll just sing. Okay, fine. आजा भैया, चलो। हाँ माता जी, वो भी आएगा, भेज दीजिए उसको। आजा बच्चों, आजा, आप भी आगे आ जाइए। हाँ चलो जी।
विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान